Hello friends, welcome everyone for this workshop Discover Yourself. I hope आपका अच्छा सेशन रहा लास्ट टाइम. आप लोगों ने एंजॉय किया लास्ट सेशन में? Yes, sir. ओके. तो खैर आज हम लोग एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आए हैं. इस वर्कशॉप में टोटल 8 सेशंस रहने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं हमारा पहला सेशन. द टॉपिक इज डिस्कवर द इनर सेल्फ. ओके. सो यहाँ पे आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगा. इट इज बीन मेंशन्ड दैट हाउ one eternal truth that can change your vision. So we are going to learn about one very important aspect of our life which can help us to change the complete vision about our life. Okay. तो before we get into this topic ना, let us take some moments. हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं समझने का कि आखिर why do we need to understand all these things? Why do we need to understand this spirituality and this aspect of inner self? So you see nowadays, nowadays is the age of science and technology, right? We are having so many gadgets, so many equipments are coming. We have smartphones, we have internet. The whole globe has become Shankanam, right? You can talk with any of the persons sitting on the other part of the globe, right? So we have such kind of technologies available with us. But you will find that in spite of all these things, still we find that the society is not becoming happier. रादर आप देखेंगे कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, कैरेक्टर है, रिलेशनशिप्स हैं, पीस ऑफ माइंड है, तो आप देखोगे कि ये सारी जो हमारी वाइटल नीड्स हैं आज के समय में उनके ऊपर भी ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जा रहा है, राइट? एंड व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट? बिकॉज देयर इज नॉट सो मच एम्फेसिस अपॉन द वैल्यूज, कैरेक्टर, एक्सेट्रा. So we are finding that even though we are having so much advancement in technology and science, still we are finding is what is happening is we are finding that the criminal rates are increasing, suicide rates are increasing, murder rates are increasing, right? There is nowadays we are giving so many seminars about stress management, है ना? पहले ये सब देना नहीं पड़ता था, stress management, time management, right? People were happier, life was simpler, life was happier. So that's why many people are nowadays, many modern people are now thinking of turning towards spirituality. Even बहुत सारे जो I know many of the people from the West also, many of the Americans and Europeans, so they are also trying to come to India and they are also trying to learn what we have the spirituality, our spirituality, the culture of Bhagavad Gita, the culture of spirituality, because we are able to find it out that how spirituality is something which can fulfill our inner needs. तो you see friends, हम सबके लाइफ में 4 क्यूज होते हैं. ओके. आई थिंक आप लोगों ने कुछ लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा, राइट? लाइक हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट IQ? ओके, वेरी गुड. सो व्हाट इज दिस IQ? Intelligent question. हाँ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, राइट? सो व्हाट इज दिस IQ? किसको पता है क्या होता है IQ? Intelligence. इंटेलिजेंस. हाँ, The measure of the intelligence. द मेजर ऑफ अवर इंटेलिजेंस, राइट? तो हाई IQ मतलब कि अ पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, राइट? तो जनरली आप देखोगे कि जो लोग अच्छे कॉलेजेस में जा पाते हैं मीन्स दे हैव हाई इंटेलिजेंस क्वेश्चन, राइट? दे आर एबल टू क्रैक IITs, JEEs एंड दे आर एबल टू गेट इन द गुड कॉलेजेस, राइट? तो देखिए हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में 4 एस्पेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज द, जैसे हमने बताया, तो फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज द PQ. PQ मीन्स फिजिकल क्वेश्चन. कितने लोगों ने सुना है फिजिकल क्वेश्चन के बारे में? ओके, आपने सुना, राइट? सो फिजिकल क्वेश्चन मीन्स बेसिकली our body, taking care of our body, right? So physical quotient means trying to keep a very healthy body. So being a very good animal, you can say, right? Because animals also, they also try to keep their body in a very healthy manner, correct? So PQ means to be a good animal. Okay. Next is this IQ, intelligence quotient, right? Like अभी currently आप सब लोग engineering learn कर रहे हैं, right? तो purpose क्या है? To become a good engineer. So you're equipping yourself with engineering knowledge right now. So tomorrow you'll be able to use this knowledge in your professions, right? So IQ means to become competent in our fields. Somebody can be competent in engineering, somebody can be competent in medical, somebody can be competent in etc. other fields, right now. So IQ means to become competent in our field or to become a good professional, you can say. Okay, so that is the meaning of IQ. Okay, इसके अलावा there are 2 more terms जो जनरली लोग हम नहीं सुनते हैं. There is something called as the EQ and there is something called as the SQ. Okay, so any of you have heard about EQ के बारे में सुना है आप लोगों ने? Okay, what is EQ? Emotional question. Very nice. Your name is Abhishek, right? Good. So EQ means emotional quotient, right? ना? So emotional quotient basically means that how do we relate with the people? हम लोगों के साथ में कैसे व्यवहार कर पाते हैं, डील कर पाते हैं, राइट? अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपने साथ में जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ में ना, तो उसे बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन, राइट? तो आपने सुना होगा टीम प्लेइंग के बारे में.
टीम स्किल्स के बारे में, राइट ना? तो when we want to deal with the people, then we need to have certain qualities. We need to have some interpersonal qualities. We need to have some qualities of humility, tolerance. All these things comes in picture. Okay, so that is called as the EQ. Okay, which basically deals with the aspect of our relationship with the people in this world. Okay, and the last thing is called as the SQ. So SQ stands for the spiritual quotient. Okay, I think ये नया टर्म होगा आप में से ज़्यादा लोगों के लिए, right ना? तो see, spiritual quotient means what? Our effort to understand about the higher dimensional science, or in other words, to understand about the higher power, to understand about the God, to understand about life, to understand about the scriptures. That is called as the SQ, the spiritual quotient. Okay, so to become a complete human being, we need to have all these four aspects in our personality. If you want to be a complete human being, okay, having PQ means being a good animal. Having IQ means being a good professional. Having good EQ means being a good friend to the people. And being SQ means to be a good saint. So we need to have all these four things in our life to be a complete human being. Okay. So see, nowadays the education system which we have, like हमारे schools में, colleges में जो भी हमने training लिया है अब तक, right? तो generally आप में से कोई बता सकते हैं कि generally वो किससे deal करता है, इन चार में से किन चीज़ों से deal करता है? IQ से deal करता है, right? We are being taught how to become good coders, how to learn mathematics, how to become civil engineers, correct? Okay, and what else? PQ, physical quotient also, right? I know हमारे बहुत से colleges में gyms होते हैं, people they want to go for jogging, people want to go for gymming etc, right ना? तो यहाँ right ना? So yeah, very correct. तो हमारे ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम में हम देखोगे कि PQ और IQ को हमें हेल्प किया जाता है उसको एनहेंस कर लेने के लिए, राइट ना? बट जनरली EQ और SQ के बारे में कोई ट्रेनिंग हमको नहीं दी जाती है, राइट ना? बट देयर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ. ओके, सो दीज सेशंस व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न, which are based upon the Bhagavad Gita, they're going to help us to evolve in terms of our EQ as well as SQ actually. So one of the first things which we have to learn in our life is our true self, our own self. Okay, तो इस सेशन में हम लोग थोड़ा लर्न करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में. लाइक आप में से कितने लोगों ने आत्मा के बारे में सुना है? राइट, ऑलमोस्ट सब लोगों ने सुना है, राइट? कहाँ सुना है आपने आत्मा के बारे में? दादी से, मम्मी से, राइट ना? इंडीड भगवद गीता में दिस इज द फर्स्ट नॉलेज व्हिच वाज बीइंग गिवन बाय कृष्णा टू अर्जुना, दैट हाउ वी आर नॉट द बॉडीज बट वी आर द आत्माज. ओके, तो में से कई लोगों ने आत्मा के बारे में सुना होगा, दादियों से या फिर कहीं इधर उधर से सुना होगा, राइट ना? आज हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि क्या आत्मा असली में एग्जिस्ट करती है, क्या ये साइंटिफिक है, लॉजिकल है बिलीव करना कि आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है. वैसे आप में से कितने लोग हैं जो मानते हैं कि आत्मा होती है? ओके फाइन. अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि आत्मा एग्जिस्ट करती है? ओके, तो आज का जो ये सेशन है वो हमको हेल्प करेगा अपने लिए भी अच्छे से कन्विंस होने के लिए कि आत्मा एग्जिस्ट करती है और दूसरे लोगों के साथ में भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लेने के लिए. ओके, तो लेट अस बिगिन अवर टॉक टुडे. So all of you are very nice, intelligent, thoughtful people. I am sure you may come across some questions also in your mind. So towards the end, we will have nice time for all of you to ask your questions. In between, if you get some questions, you can keep it in your mind. Towards the end, we will answer those questions. Okay? Because कुछ questions जो आपके हैं, वो सेशन के बीच में आगे, as we will progress in our session, वो वहाँ पे भी आंसर होंगे. तो here you will find Okay, so here is the introduction about the inner self, right? तो आपको देखिए स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? There is a car, and who is there? A driver is there, right? ना? तो see what does it says? One of you can read this. As a driver drives a car, soul drives a living body. Scientific researches have proved it. Yeah, okay. तो just like देखिए, जैसे कार होती है ना, कार without a driver can the car even move an inch? No, car can't move even an inch, correct ना? So driver is required to move a car. Okay, same में बताया गया कि कैसे we also have this body. This body is also like a car. It is also like a vehicle. Okay, and the reason this body is active is because of the presence of the driver. That driver is the आत्मा. Like जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं,
So this is our body, which is like a car, and there's a driver. Who is that driver? The Atma, which is making it driven. Okay. So this Atma is the living force. You will find जो हमारी body है, it is made of the matter. And see what is the nature of the matter? Matter is generally dead. Just like you see now, see this laptop is there, this mobile is there. It is all matter, elements. Okay. So it is dead. It does not have any feeling, right? But when the Atma is present in the matter, just like in our body also, when the Atma is present, then only it has some value, then only it becomes living. Okay. So anyways, we are going to learn about this. To see why we have to study about this soul concept. Okay. आप में से कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ी है या सुना है अच्छे से उसके बारे में? ठीक है. तो देखिए भगवद गीता में आप देखेंगे ना, see this is a scene before भगवद गीता was being spoken. Can any of you tell what is this scene? क्या हो रहा है इस सीन में? कौन है वो? अर्जुन है. और ये कौन है? So Arjuna is very happy, jolly. Arjuna is feeling very very sad, morose, crying. तो ऐसा बताते हैं भगवद गीता के शुरू में. अर्जुन he was, जब उसने देखा कि कैसे he has to kill his own brothers, own relatives, then he was not feeling very confident to do that fight. Okay. And then he has given up his bow and arrow. उसने अपना धनुष में सब रख दिया और बोला मुझसे लड़ाई नहीं होगा भला. And then Krishna spoke Bhagavad Gita to him. Okay, so initially we find that Arjuna was, see that is what he speaks there. So Arjuna was having lack of confidence, he was having great anxiety, he was demoralized, he was having stress, he was having depression, he was crying tears. Lekin when Krishna spoke Bhagavad Gita to him, then what do we find? Again, Arjuna became very confident, very courageous, very bold, and then he took up his bow and arrow, and then he fought the battle. And what was the consequence of the battle? Who became victorious? Pandavas became the victorious, right? So this is the power of the message of the Bhagavad Gita you will find. So why it happened? Because he heard the knowledge of the soul from the Bhagavad Gita actually. So see, Bhagavad Gita is a very beautiful book which is being appreciated by people from all walks of life. Like there are many philosophers, there are many scientists who have appreciated about the Bhagavad Gita, right? Like to give you some examples of politicians. Any of you know any example of politician who appreciated Bhagavad Gita? Narendra Modi. Anyone else? Mahatma Gandhi, right? Radha Krishnan, like that, you know. There are many philosophers also, you know, like there are many scientists also, like Albert Einstein, APJ Abdul Kalam, Oppenheimer. So people from all walks of life have appreciated the message of the Bhagavad Gita. And this Bhagavad Gita teaches us, one of the first knowledge which Bhagavad Gita is teaching us is the knowledge about the soul, which we are going to learn today. So what we are going to learn is, we are going to learn from Bhagavad Gita about the knowledge of the soul, okay? And that knowledge will help us to also become like Arjuna. Very, very confident, very, very courageous, very, very bold, and very, very confident about doing our duties, okay? So see, this will be the contents of our presentation today. We are going to see these 5 things, okay? Are we matter or are we the spirits? Are there some scientific proofs about the existence of the soul? Is there any difference between the living being and the robot? Are we simply a robot or we are different from a robot? Okay, we are going to learn that. We are also going to learn a very interesting thing, the mechanism of our mind. Right? How many of you have difficulty controlling your mind? Right? कितने लोगों ने देखा है कि हम चाहते कुछ हैं लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और करवाता है ना? Yes, so here we are going to learn how we can control our mind. How we can do things of our choice, how we can force our mind to do things of our own choice. And we are also going to learn towards the end that how, by understanding this knowledge about the soul, how this can greatly transform our lives and the life of the entire world. Okay, so let us begin with the first topic. So this is the first thing we will discuss. Are we matter or we are spirit? Okay. So you see here it is being there. He is a person. So suppose if this question is asked to you, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो? Who are you? Generally, what will be your answer? Anyone? Yes, gentlemen. You are Karthik. Okay, fine. Any other answers? We will say that we are from this particular country, India. Okay, fine. So we may say that, okay, I'm an Indian, I'm a Pakistani, I'm a Muslim, Christian, etc. Right now. But ये देखो, ये सारी चीज़ें जो हम लोग जिसके साथ में हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं,
क्या ये परमानेंट चीज़ है या फिर टेम्पररी चीज़ है? व्हाट डू यू से? जैसे आपने बताया कि आपका नाम कार्तिक है, राइट? सो नाउ इज योर नेम अ परमानेंट थिंग विच विल ऑलवेज रिमेन विथ यू, और इज इज समथिंग विच कैन बी चेंज्ड? कैन बी चेंज, राइट? कई लोग अपना नाम बदलवा देते हैं, अखबारों में फिर वो डालते हैं ना एडवर्टीजमेंट डाल के कि हमने अपना नाम बदल दिया, राइट ना? सपोज आप अपने आपको इंडियन कह रहे हो सकता है कल आप अमेरिका में चले जाओ, वहाँ पे जाके वहाँ का सिटीजनशिप ले लो, देन व्हाट यू विल बिकम? अमेरिकन, राइट? सपोज टुडे यू आर हिंदू, टुमारो वन विल कन्वर्ट द रिलीजन, ही मे बिकम अ क्रिश्चियन, करेक्ट? तो आप देखेंगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब हमारी एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़ हैं जो कि चेंज हो सकती हैं, करेक्ट ना? तो then actually who we are then? We can't be changing thing, right? We are something which is not changing, right? So what is that unchanging thing that we have to learn, right? So generally we may say that okay we are these things, but this is a very important question to be thought of. क्या कि actually हम कौन हैं, right? तो जनरली देखिए, जनरली जो साइंस है हमको बताते हैं कि हम सब कौन है। जनरली हम अपने आप को ये मानते हैं, राइट? ये जो शरीर है हम अपने आप को इस बॉडी मानते हैं, राइट ना? ये डॉक्टर हैरी मॉन्सन है, इन्होंने एक रिसर्च किया है हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी के ऊपर में, और उन्होंने क्या किया, हमारे बॉडी के जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी सारे केमिकल्स हैं, उन्होंने उनको क्वांटिफाई करके उन्होंने निकाल के सेग्रेट करके निकाला, राइट? तो बाय रिसर्च ही वाज एबल टू फाइंड आउट दैट हाउ in a body, in a human body of 60 pound weights, generally all these elements are present, you know, like there's a 5 pounds of calcium, there's 1.5 pounds of phosphate, there's 9 ounces of potassium, like this, all these chemicals are there, okay? So this is what our body is made up of, जिसको हम जनरली हम बोलते हैं ये मैं हूँ, राइट? तो हम जनरली ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा केमिकल एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं, राइट ना? एंड यू नो वन इंटरेस्टिंग थिंग, इफ़ यू गो टू द मार्केट, और अगर आप मार्केट में जाके सारे केमिकल्स खरीद कर लेकर आओगे तो यू नो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस? एनी गेसेस? एनी गेसेस? कोई केमिकल वाला है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है, चलो। एनीवेज, अगर आप हमारे इंडियन मार्केट में जाओगे तो ये सारे केमिकल्स आपको मिल जाएंगे कितने रुपए में? 110 रुपए में, राइट? तो जिसे हम अपना जिसे हम जिस चीज़ को हम बोलते हैं दिस इज मी, सो व्हाट वी आर बेसिकली वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ 110 रुपीज़। Does it sound very interesting? Does it sound very appealing? If I say to you, Abhishek, you are a 110 rupees product only. Does it make much sense to you? Doesn't make sense, right? Right? So why it does not make sense? Because see, we understand that how there is something more sacred in all of us than mere these chemicals, right? कुछ हमें special है. We are not simply a chemical bundle, right? सो सी आज के समय में हमने देखा, जैसा हमने पढ़ा है आजकल के समय में जो मॉडर्न साइंस है, इट इज टीचिंग अस दैट हाउ वी आर सिंपली अ केमिकल बंडल। बट नाउ लेट अस ट्राई टू एनालाइज, क्या कैन वी बी सिंपली अ केमिकल बंडल और वी आर समथिंग एल्स, राइट? नाउ लेट अस से सपोज इफ आई टेक ऑल दिस केमिकल्स इन अ ट्रे राइट नाउ विल दिस केमिकल्स शो सम इमोशंस? But do we show some emotions? Yes, we do show some emotions, right? Suppose you have got bad marks in your exams, you will have some emotions, correct? You will feel bad, or you know you have some breakup of relationship with some good friend, you will have some emotions, right? Or your mother is treating you very warmly, you will have some display of the emotion, right? But you will find that a bundle of chemical will have no emotions. Will the bundle of chemicals will ever have any feelings? There will be no feeling, right? Can the bundle of chemical ever will something? Okay, I will do this thing. No, but we do feel like that right now. So the point is that we understand that how we are not simply a chemical bundle, we are not simply a matter. Because देखो जो matter होता है ना, matter means basically these 5 things: earth, water, fire, air and ether. ये 5 चीजें ना आपने पढ़ा होगा, धरती, अग्नि, वायु, आकाश, राइट? इसे matter बोलते हैं, जिससे कि वर्ड बना हुआ है, ठीक है? तो अब देखिए कोई मैटर को आप लीजिए, क्या मैटर कुछ इमोशन शो करता है? नहीं शो करता, राइट? मैटर में कुछ सिम्टम आते हैं, इस तरह के फीलिंग्स आती हैं, जैसे मोबाइल पड़ा मेरा यहाँ पे, राइट ना? विल इट शो सम सिम्टम्स, सम इमोशंस? नहीं करने वाला, राइट ना? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। व्हाट इज द डिफरेंस? दैट वी हैव चेतना। हम सब में क्या है? चेतना है, हम सब में फीलिंग है, हम सब में विलिंग है, राइट ना? तो वी अंडरस्टैंड इट हाउ वी आर नॉट सिंपली अ केमिकल बंडल, वी आर नॉट सिंपली अ मैटर, राइट? See, we have to understand it very importantly, because see, that is what we have learned in our colleges and the schools, that how life has come from the chemicals and we are simply a chemical bundle. But if it would have been there, then no one would have treated us with respect, dignity, right? Another example, let us say suppose मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, अभी मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर्सिडीज बेंज कार में जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना? तो अभी आप क्या करेंगे? आप सपोज उस मौके पे पहुंच गए,
आप अपने फ्रेंड को पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे या फिर जो मर्सिडीज बेंज कार है उसको पहले गैरेज में लेके जाएंगे? फ्रेंड को लेके जाएंगे। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंटली कि फ्रेंड को लेके जाएंगे? ओके, आप आई थिंक आपको व्हाट इज योर आंसर? मर्सिडीज को लेके जाएंगे। ओके ठीक है, चलो अटपट आंसर है, नो प्रॉब्लम, राइट। तो अब नाउ सी, अगर हम थोड़ा सा लॉजिस्टिक की बात करें, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर फ्रेंड? 110 rupees, right? Is it like that? And what is the cost of the Benz car? 25 lakhs, right? Na? So फिर then why we will choose to take our friend? So this shows that how we understand that how that life has much more value than simply chemicals. Life is not simply a chemical bundle, but life has much more value than that, right? That's right. Na? So the thing is that how, no, it is not that the body is of much value, but because the Atma is present in the body, that's why the body has some value, okay? So we'll see one example. See, here is a very famous actress, right? Bollywood actress. What was her name? Any of you know? Sridevi, okay. There's a Bhudevi, there's a Sridevi, okay. Anyways, okay. So you know Sridevi, so I think 1-2 years back she passed away. So now she was very beautiful, right? Very appealing, right? Very, very attractive, right? Now suppose when she died, so this is the real photo of hers when she died, you know. Now see the dead body is there, right? Now you see, is there a difference between the living Sridevi and the dead body? Yes or no? There is a difference, right? What is the difference? The difference will be, although the chemicals are same, right? Body तो same ही है ना, सारे chemicals तो present है उसमें, right? But what will happen? You will find that there is no feeling, right? There is no feelings, there is no thinking, there is no desires, there is no movement, there is no consciousness. Consciousness का मतलब है कि चेतना। जैसे देखिए, मुझे यहाँ पे किसी ने चींटी काटा, मुझे चेतना लगता है, राइट? सपोज आग में मेरा हाथ लग गया, मुझे हटा देता हूँ मैं वहाँ से, राइट? उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना होना, है ना? मतलब कि we give some responses, we give some response to the stimulus. तो you will find that chemicals तो same है, but क्या है? We understand that how we find that all these symptoms are missing. So now can any of you tell it why these symptoms are missing in the dead body? Why these symptoms are missing and why they were present in the living Sridevi? What is causing that? There must be something which is causing this difference, correct? So what is that? Yes? Like the driver is not there. Because the driver is not there. And what is that driver? The driver is the Atma. As long as the Atma is there within the body, Atma have feelings, thinking, desires, movement, consciousness, right? And as soon as the Atma leaves the body, we find that nobody wants to even come near the dead body, right? When the Atma is present, everyone is just a fan. They're wanting to take association. When the Atma has left the body, even जो खुद के चाहने वाले लोग होते हैं वो भी पास में नहीं आना चाहते, right? Correct, ना? So it is because of the presence of the Atma that a person remains beautiful. As soon as the Atma leaves the body, then it is no more beautiful actually. So this clear cut shows that how matter is dead, whereas it is because of the Atma that the body appears to be living. The body is same, but the soul has gone. So here also we find, you see. So the same thing was spoken in the Bhagavad Gita by Krishna to Arjuna. In the second chapter of Bhagavad Gita, you will find. See, Krishna says, "Na jayate priyate va kadachin, nayam bhutva bhavita va na bhuyah, ajo nitya shashvatoyam purano, na hanyate hanyamane sharir." आप में से किसने पहले श्लोक सुना है? Okay, good, fine. So this talks about the nature of the soul. Okay, that how, what is the nature of the soul? न जायते, जिसका जन्म नहीं होता है, म्रियते, जिसका कभी मरण नहीं होता है, कदाचित मीन्स कभी भी। तो जो आत्मा होती है उसका न तो कभी जन्म होता है न कभी उसका मरण होता है। नायम भूतवा भविता न भूया अजो नित्य, जो आत्मा होती है वो अज है। अज मतलब कि वो उसका जन्म नहीं होता है और वो नित्य है। नित्य मतलब कि वो परमानेंट है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, शाश्वत है। ओके, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जब ये शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आत्मा का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, आत्मा स्टिल रिमेन्स। तो ये भगवान ने बताया अर्जुन के बारे में, इसके बारे में। For the soul there is neither birth nor death at any time. Okay. So see, this is the difference between our body and the Atma. Okay. So body is made up of the matter, whereas the soul is made up of the spirit. Okay. The body has no consciousness, right? Whereas the Atma has consciousness. Body changes, but the Atma does not change.
Body is temporary whereas Atma is permanent. Eternal का मतलब है permanent. Okay. Body dies but the Atma always remains. So you see this man is looking inside the mirror, right? So every day we look at the mirror, right now, but we must understand it how what we look is not what we really are, because we are not these bodies, correct? We are not these bodies. What we are actually the driver which is seated inside the body. Okay, we should be understanding this knowledge. So see, देखो दो व्यू पॉइंट्स बताए गए हैं. तो एक मटल व्यू पॉइंट है जो जनरली हम लोग सुनते हैं, राइट? तो वो क्या बताता है कि हम सब क्या है, आप देखोगे जो अलग अलग स्पीशीज हैं, like we see an elephant, we see a deer, we see a cow, we see a human being, right? So Mattel viewpoint teaches us what? कि हम सब matter है. We all are matter, okay? We are simply chemical bundles, okay? And when we die, at the time of death, what happens is we are finished. As long as this body is there, we remain. As long as at the time of death, what happens is we are finished. This is what the Mattel viewpoint teaches us. But what Bhagavad Gita is teaching us? Bhagavad Gita is teaching us about the spiritual viewpoint. So what it says is that how हम सब ये metal bodies नहीं हैं, but we are the atmas which are seated inside these bodies, right? You are seeing, just like you see, suppose like you know, like now all of you are into colleges, right ना? तो आप में से कितने लोगों के पास में bicycle है? Okay. किन्हीं के पास में two wheeler है? Okay, two wheeler भी है किसी के पास में, right ना? तो देखो एक बार जब आप कॉलेज से पास आउट हो जाओगे, then you may join some company, you may start having some earning, then you may want to have your own motorbike, right? Bikes, Hero Honda, etc. Right now, after some time getting some more money, you may want to go for a car. After some time, if you become a good manager, big manager, you may want to have a bigger car. Sometime later, you may want to go for your own helicopter, aeroplanes, right? So now you see, you change the vehicle as per your earning capacity, right now. So, but you remain the same. The driver remains the same. The vehicles are being changed, right? So that is what Bhagavad Gita is teaching us, that how we are the same atmas which move across the different bodies as per our different karmas. Okay. And when the body dies, the atma is not dying. Okay. So see here it says one thing, right? One of Piyush, can you read this? Just as the bird is trapped in the cage, the soul is trapped in the body, made up of 5 elements: earth, water, fire, air, ether. Yeah, so हम सब आत्मा हैं जो कि अभी शरीर में भी बंधे हुए हैं. ओके, जैसे आप देख रहे हैं, आपको एक पैरट है जो कि पिंजरे में बंधा हुआ है. ओके, ओके, go ahead. Not knowing their real identity as the soul, the people spend all their lives in polishing the cage, pampering the body, without feeling the soul. Can you say how? या तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं इस लेडी को आप, वो क्या कर रही है, बहुत इसके पास में एक गोल्डन केज है, सोने का पिंजरा है. ओके, देखो उसको बहुत ध्यान से वो हर दिन उसको सजाती है, बट उसके अंदर जो पैरट है उसको वो खाना देना भूल गई है. तो इसलिए देखो पैरट को क्या हो गया, पैरट हैज डाइड एक्चुअली. तो देखो सेम इन द सिचुएशन इन अवर मॉडर्न टाइम्स. इन द मॉडर्न टाइम्स, बिकॉज वी डोंट हैव दिस नॉलेज अबाउट द आत्मा, and we are being just taught at how we are simply these chemical bodies, these chemical bundles, right now. तो इसलिए आप देखोगे कि हमारा जो पूरा समय जाता है, all our time is spent just to take care of this body, and we are not providing anything for the atma. And this is the reason that why we are finding that in the society people are not able to become happier. इसी कारण से आप देखेंगे कि even though material facilities सारे available हैं, but फिर भी आप देखोगे there are so many varieties of the deodorants, there are so many varieties of the movies, music, and eatables. But still, we are finding that people are still not happy, satisfied. Still, we find people are committing suicides, feeling depression, and are not able, still finding confusion in their life, right? Why? Because the soul is missing the food. So this knowledge of the Bhagavad Gita, what we are learning now, this is a food for the soul. If we have this knowledge, then we will be able to feel satisfied. That will happen. Okay. So this was the first part we learned, that how we are not simply a matter, but we are the atmas, we are the spirits. Okay. Now, जनरली से देखो साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई लाइफ केमिकल से आया था, राइट? हमने सबने भी यही पढ़ा, राइट? केमिकल से लाइफ, राइट? बट देखो हमारे ऑब्जर्वेशन में क्या कभी ऐसा होता है कि केमिकल से लाइफ आता है? लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक आज के डेट में now we know all the chemicals within our body, right? Suppose we know, let us take a mosquito now. Mosquito is a very small being. We know all the chemicals present inside a mosquito, correct? Now, has any scientist ever made even a single mosquito in the laboratories? No. So, अगर हम सिर्फ chemical bundle होते, if we are simply a combination of the chemicals,
then why not we are able to create life? Why not till date we have not been able to make even an ant, a mosquito? This is a very important question to understand. Why? Because the reason is because we are not simply this matter, we are not simply this chemical bundle. There is the presence of Atma which activates this matter, right? Just like आप देखोगे कभी आपके पास में अगर हैंड ग्लोव है, जैसे सर्दी का टाइम आने वाला है आगे ऑलमोस्ट राइट ना, तो हम जब हैंड ग्लोव पहनते हैं तो अभी देखो हैंड ग्लोव मूव करते हुए दिखाई देता है बाहर से राइट ना, बट असली में क्यों वो मूव कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर में क्या हाथ है, लिविंग चीज है राइट ना, इसलिए वो मूव करते हुए दिखाई देता है। वैसे आप देखो कि जो बॉडी है वो अपने आप में डेड है, लेकिन जब आत्मा इसमें प्रेजेंट होती है तो ये बॉडी एक्टिवेटेड रहती है। तो आप देखोगे कि कभी भी केमिकल से लाइफ नहीं आती है। अगर ऐसा हो रहा था तो फिर अब तक बना देना चाहिए था ना, क्यों नहीं? आज के डेट में आज तक एक भी लाइफ क्यों नहीं बना पाया है सारे केमिकल्स का नॉलेज होने के बावजूद भी? तो लाइफ केमिकल से नहीं आती है। भगवद गीता को बताती है कि जहाँ पे लाइफ होती है वहाँ पे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे सपोज अभी हमारा ह्यूमन बॉडी है, एज लॉन्ग एज द आत्मा इज प्रेजेंट इन द बॉडी वी सी दैट हाउ द बॉडी ग्रोज, द केमिकल्स ग्रो इनसाइड द बॉडी राइट। जैसे सपोज आपने एक छोटा सा बीज डाल दिया, नींबू का बीज आपने जमीन के अंदर में डाल दिया तो उससे नींबू का पौधा आएगा, और फिर नींबू इज विच एसिड? Citric acid. Then you can have lots and lots of citric acid, right? So the life was there, from the life the chemicals are coming, right? But on the contrary, उल्टा नहीं होता है कभी, okay? So anyways, this is very clear that how we are not the matter but we are the spirits, okay? Now let us see that हमने अब तक थोड़ा आत्मा के बारे में डिस्कस किया। क्या ये साइंटिफिक चीज है? क्या इसके बारे में कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं? Will be just amazed to see that how there are so many scientific proofs about this. And many great scientists are now believing upon this knowledge which is given in the Bhagavad Gita actually, this knowledge about the soul, okay? So here are some of the proofs. So these are the 4 proofs which we will discuss, okay? So let us take one by one. First is a common sense, right? So यहाँ पे आप देख रहे हैं this lady has died. जब भी कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? What do we say? She passed away, right? वो चला गया. The question is that the body is here, right? The same body is there, the same chemicals are there, right? So then the question is that who has passed away? So we understand that it is the Atma which has passed away, right? देखो हमारे जनरल अंडरस्टैंडिंग में भी आप देखोगे ना, like you know, see suppose जैसे मान लीजिए what is this? What do I call? This is my mobile. This is my bottle. This is my laptop. So when I say this is my laptop, it means what? हाँ, very good. I'm different from this laptop, right? I'm different, right? Otherwise I would say ना, I'm laptop, I'm bottle, I'm mobile. ऐसा तो नहीं बोलते हैं. This is mine. Mine means I'm different from this, right? Same way. What do we say? This is My body. This is my hand, right? This is my eyes. This is my legs. This is my body. Which means what? We are different from the bodies, right? So in our common understanding also we know that how we are different from the body. And what is the different thing? That is Atma, okay? The second proof is the consciousness, the Chetana which is there, right? तो सी देखिए, अगर हम सोचते हैं कि चलिए ठीक है भाई हमारे पास में बहुत सारी मशीन्स हैं और हम भी एक थोड़ा बहुत पावरफुल मशीन है, जैसे सपोज जैसे भी कैमरा मेरे सामने लगा रहे हैं डिस्प्ले ना, ठीक है, like earlier people were claiming sometimes that okay we are like simply like a machine only, a complex machine, right ना? बट यूँ से देखो, क्या कोई कॉम्प्लेक्स मशीन होगी, क्या उसमें कोई चेतना होती है क्या? कैन इट हैव सम फीलिंग्स? उसमें कोई फीलिंग हो सकती है? कोई फीलिंग नहीं हो सकती है, राइट? सपोज ये लैपटॉप है, इफ आई बीट दिस लैपटॉप विल इट शो सम फीलिंग्स? फीलिंग नो, बट वी आर एबल टू डू, राइट? तो ये जो चेतना है ये भी प्रूफ है कि कैसे वी आर लिविंग बींग्स. इट इज बाय दिस चेतना इज देयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आत्मा. सो जो चेतना होती है वो कैसे मैनिफेस्ट होती है? इन द टर्म्स ऑफ थिंकिंग. हम लोग सोच सकते हैं, सोचने की क्षमता है हमारे सामने, राइट? जैसे मान लीजिए सामने यहाँ पे अगर सांप आ गया तो नाउ सी विल दिस लैपटॉप शो एनी रिस्पॉन्स? नो, राइट? बट व्हाट आई विल ट्राई टू डू, आई विल इमीडिएटली ट्राई टू एस्केप फ्रॉम हियर, राइट? और आई विल ट्राई टू हैव अ स्टिक एंड बीट दैट, करेक्ट? व्हाई? बिकॉज आई हैव अ चेतना, आई कैन थिंक अबाउट इट, ऑल्सो आई विल फील अबाउट इट, राइट? हाउ आई विल फील? अगर सपोज यहाँ पे सांप आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? फेयरफुल लगेगा, राइट? डर लगेगा, करेक्ट? बट इस लैपटॉप को कुछ लगेगा क्या? नहीं लगेगा, राइट ना? तो ये जो चेतना का प्रेजेंस है ये भी शो करता है कि कैसे हमारे अंदर में क्या प्रेजेंट है? आत्मा प्रेजेंट है, जिसके कारण हम लोग ये चेतना शो कर पाते हैं, राइट? और डेड बॉडी में वो क्या क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज उसमें चेतना नहीं रहती है, उसमें आत्मा नहीं रहती है. दिस आल्सो अनदर वेरी स्ट्रांग प्रूफ. जबकि मशीन्स में आप देखोगे, मशीन्स में कुछ थिंकिंग फीलिंग नहीं होती है, राइट? जैसे हमने डिस्कस किया, राइट?
Another very important proof is this something called as the near death experiences and out of body. आप में से कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है, नियर डेथ एक्सपीरियंस इसके बारे में? ओके, आपने सुना है, क्या सुना है आपने उसके बारे में? लोग मतलब ऑलमोस्ट मर जाते हैं, फिर उन लोग कुछ उसके बाद वो कुछ प्रोसेस नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है, फिर वापस जब कॉन्शियसनेस में आते हैं तो बताते हैं कि ये हुआ था। हाँ, वेरी नाइस। तो नियर डेथ का क्या मतलब होता है? नियर डेथ मतलब कि मृत्यु के जस्ट पास में पहुंच गया था व्यक्ति। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों के ऑब्जर्व किए गए हैं जिसमें कि जैसे सपोज उनको बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। आई हैव अ वीडियो आल्सो ऑफ नेशनल ज्योग्राफिक, मे बी आफ्टर सेशन आई विल शो यू इफ द टाइम परमिट्स। तो उसमें एक वीडियो में दिखाया कि एक लेडी थी, इट्स अ स्टोरी फ्रॉम यूरोप। तो इस लेडी का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया और उसको फिर एम्बुलेंस में लेके गया हॉस्पिटल में जाके उसको, तो एकदम वो पूरी बेहोश थी और पूरा उसका लाइफ का भी सिम्टम्स एकदम मैनिफेस्ट होना बंद हो गया था। तो कई घंटों तक डॉक्टर्स लोग उसको ऑपरेट कर रहे थे, ऑलमोस्ट 12-13 घंटे के लिए उसका ऑपरेशन चला और बहुत कम लाइफ सिम्टम्स उसमें दिख रहे थे, पूरी एकदम बेहोश थे एकदम और फिर 12-13 घंटे एकदम सीवियर ऑपरेशन होने के बाद में फिर वो थोड़ा बहुत वापस होश में आई। एंड जब वो होश में आई then she was able to tell that I was able to see everything what was happening to my body and she was able to tell exactly कि किस डॉक्टर ने क्या क्या चीज़ें किया, कैसे कैसे किया। she was able to tell एकदम exactly and the doctors were surprised at how can this be possible because देखिए जब ऑपरेशन करना होता है ना तो क्या देते हैं, ऐसे मतलब कि आप पूरे बेहोश रहते हैं, कुछ पता नहीं रहता है। but she was telling that I was able to see everything from the above, right? बहुत अच्छा वीडियो, I have this video, this came in the National Geographic, you can see that, right? तो so this called as a near death experiences. Same way something called as out of body experiences. तो कई लोग हैं जो अपने बॉडी से बाहर निकल के जा पाते हैं एंड दे आर एबल टू टेल सम ऑब्जर्वेशन। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च हो रखा है और ये एक्सपीरियंसेस कुछ अनकॉमन चीज़ें नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दैट हाउ, सी दिस इज इन द मेडिकल जर्नल ऑफ अमेरिका। इट सेज, वन ऑफ यू कैन रीड दिस, 11% to 14% of the average American population who are mentally and physically healthy have had OBE. हाँ, कितनी पॉपुलेशन का परसेंटेज? 11 से 14% लोगों ने इस तरह के एक्सपीरियंसेस फील किए हैं। किसमें आया ये? मेडिकल जर्नल में आया है, अमेरिका के मेडिकल जर्नल में। कैन यू इमेजिन? तो सेम भी आप देखोगे दिस माइकल सेबम, ये भी बहुत बड़े रिसर्चर है, उन्होंने भी बहुत सारे केसेस स्टडी किए एनडी के ऊपर में। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि कैसे लोग अपने बॉडी से बाहर जा पाते हैं। तो एक्चुअली वो क्या चीज़ है जो बाहर जा पाती है? दैट इज द आत्मा, बिकॉज द आत्मा इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। इसलिए पीपल आर एबल टू हैव सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस वेयर दे आर एबल टू गो आउट ऑफ द बॉडी एंड दे आर एबल टू डू लाइक दैट, राइट? देयर आर मेनी बुक्स आल्सो अबाउट दिस मैटर, hundreds and thousands of books are there. It's a very very well researched field nowadays. So they also trying to figure out कि आखिर हो कैसे रहा है। But in Bhagavad Gita already it is being given that why it happens, because the Atma is independent of the body. The Atma is separate from the body. That's why Atma can have such kind of observations. Okay. Here is another very very important proof. This is about reincarnation, right? आप में से कितने लोग reincarnation के बारे में जानते हैं? Okay. क्या होता है reincarnation? पुनर्जन्म, राइट? वेरी नाइस। क्या होता है पुनर्जन्म? पहले की लाइफ की जो मेमोरीज होती है थोड़ी याद रहती है। हाँ, आपने सुना ऐसे कुछ केसेस कि जिसमें कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसे अपने पुराने जन्म के बारे में सारी चीज़ें याद हैं, बताता भी है, और जब उसको रिसर्च करते हो तो देखते हैं कि सही में ऐसा एग्जिस्ट भी करता है। किसी ने कोई रियल एग्जांपल देखा है अपनी लाइफ में? ओके, आपने देखा है? थोड़ा बताना चाहोगे आप क्या एग्जांपल देखा है आपने? आयुष, आप बताना चाहोगे? मेरे चाचा का लड़का था, वो बता रहा था पहले मेरे दादाजी का नाम, पर दादाजी का नाम सबको बता रहा था, कभी इसको पता भी नहीं था, मिला भी नहीं था, मुझे बताया भी नहीं था, पर 3 साल की उम्र में बता रहा था। या तो देखिए, इसी को बोलते हैं रीइंकार्नेशन, कि कई लोगों को अपने पुराने जन्म का मेमोरीज रिमेंबर वो लोग रह पाते, राइट? तो ये जो डॉक्टर इयन स्टीवनसन है, इन्होंने ऐसे 3000 केसेस को स्टडी किया है। ही इज़ अ प्रोफेसर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, यूएसए। तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति क्लेम करता है कि वो पुनर्जन्म का केस है, तो वहाँ पे जाते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो ऐसे उन्होंने 3000 केसेस को स्टडी किया है एंड ही हैज कम आउट दैट यस, दिस इज समथिंग व्हिच रियली एग्जिस्ट। देयर आर मेनी पीपल हु आर एबल टू रिमेंबर देयर पास्ट लाइफ एंड देयर आर मेनी केसेस। आई विल शो यू वन वीडियो आल्सो ऑफ अ पर्सन कॉल्ड एज जेम्स। तो छोटा बच्चा था वो, दैट केम इन दैट फॉक्स न्यूज़ ऑफ अमेरिकन चैनल, जैसे हमारे पे डिस्कवरी होता है वैसे यहाँ पे फॉक्स चैनल होता है। उसमें दैट बॉय वाज स्मॉल बॉय फ्रॉम द, आगे वीडियो आएगा, उसका नाम जेम्स है। बचपन से उसको ना वो एरोप्लेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने लग गया, कैसे एरोप्लेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे मैं बहुत बड़ा पायलट था पहले, मेरा नाम ये था, मेरे फ्रेंड्स ये लोग थे, लाइक। तो पेरेंट्स को समझ में आती है कि ये सब चीज़ें क्या हैं। बाद में जाके फिर उन पेरेंट्स लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया, जो बोला था
जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था थोड़ा उसमें उन्होंने उसको नोट डाउन करना स्टार्ट किया एंड देन दे रेफर्ड एंड दे फाउंड इट यस ही वाज रियली एग्जिस्टिंग. ही वाज अ पायलट इन द यूएस एयर फोर्स अर्लियर एंड ही वाज बीइंग शॉट डाउन बाय द जापानीज. और उसकी जो सिस्टर थी, उसके जो साथ के जो को पायलट्स थे, वो सब अभी एग्जिस्ट करते थे. तो जब ये उनके पास में उनको लेके जाया गया तो देन ही वाज एबल टू रिमेंबर ईच ऑफ देम एक्चुअली. इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. उसका एक हम लोग वीडियो भी देखेंगे. सो द पॉइंट इज दैट कि ये जो पुनर्जन्म की चीज़ें हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं. तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है एंड ही हैज़ फाउंड आउट एट हाउ इट एग्जिस्ट. आप अगर गूगल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इनके बारे में बहुत बड़ा डेटा. और उन्होंने रिसर्च में देखा है कि कैसे बहुत सारी बुक्स भी हैं इससे रिलेटेड, बहुत सारे लोगों ने इस पर भी रिसर्च किया हुआ है रीइंकार्नेशन के ऊपर में. और उन्होंने देखा है इयान स्टीवनसन ने कि कैसे कई लोगों को फोबियाज होते हैं. राइट, आप में से कितने लोगों ने फोबियाज के बारे में सुना है? राइट, फोबिया मतलब कि कुछ चीज़ों को लेकर डर रहता है. राइट, या किसी व्यक्ति को पानी से बहुत डर लगता है, या किसी व्यक्ति को थोड़ा ऊंचाई से डर लगता है. राइट ना. तो उन्होंने स्टडी किया कि कैसे पुरानी लाइफ में आपका किस मोड से डेथ हुआ है, हाउ यू डाइड इन द लास्ट लाइफ, उसके हिसाब से आपको फोबिया रहेगा. राइट, फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई अगर पानी में डूबने से मर गया लेट अस से लास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में क्या होगा, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट यू मे हैव अ फोबिया विद वाटर. सपोज कोई पुरानी लाइफ में किसी ने किसी वेपन से मार दिया, तो इस लाइफ में आपको उस वेपन के लिए आपको फोबिया होने की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसीज है. तो उन्होंने रिसर्च अपना निकाल के दिखाया. ऐसा एग्जाम्पल्स में बता रखे हैं. और एक और उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज जो फाइंडिंग की अपने इसमें, दैट इज अबाउट द ट्विन्स. राइट, जुड़वा दिख रहे हैं आपको? आप में से किसी ने कभी जुड़वा को ऑब्जर्व किया है? ओके राइट. अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जुड़वा जो लोग होते हैं दोनों का सेम बॉडी होता है. राइट, आँख कान नाक सब एकदम आपको देखने में आवाज भी सेम मिलेगी. राइट ना. क्या दोनों का सेम बिहेवियर होता है? हाँ है ना. कंप्लीटली ऑपोजिट होता है. कई बार कंप्लीटली अपोजिट भी होता है. राइट ना. अब देखिए बायोलॉजिकली अगर बात की जाए तो जो दो बॉडीज हैं, अगर आप जेनेटिक मटेरियल मिलाएंगे आप तो सेम है ना. जेनेटिक मटेरियल पूरा जो केमिकल कंपोजिशन है बॉडी का, इट इज एग्जैक्टली सेम. करेक्ट. बट देन व्हाई in spite of having the same chemical composition of the body, why they are exhibiting different behaviors? Different atmas. हाँ, because there are different atmas which are existing in this two same type of bodies. Right? जैसे मान लीजिए दो कार है, दो मर्सिडीज बेंज कार है, एकदम नई शोरूम से आप लेकर आए. राइट, एकदम हूबहू एज इट इज है, सेम मॉडल, दोनों एकदम एज इट इज हो गए. राइट ना. बट सपोज मान लीजिए एक मैं आपको ड्राइव करने देता हूँ और एक सपोज आपको ड्राइव करने देता हूँ. राइट, डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? और तो कहाँ सेम. राइट, सेम वे, क्योंकि आत्मा जो एग्जिस्ट कर रही है वो डिफरेंट है दोनों बॉडीज में, इसलिए डिफरेंट बिहेवियर शो करता है. और ये हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? इयान स्टीवनसन बोल रहे हैं. आप पढ़ भी सकते हैं सेम चीज के बारे में. राइट, तो दिस ऑल्सो अनदर स्ट्रॉन्ग प्रूफ दैट हाउ पुनर्जन्म होता है और कैसे आत्मा एग्जिस्ट करती है. तो सी द अमेजिंग थिंग, यू नो, साइंस इन सारी चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश कर रहा है. रिसर्चर्स सबको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट द पॉसिबिलिटीज कि आखिर कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. बट द ब्यूटी ऑफ द भगवद गीता, दिस नॉलेज इज ऑलरेडी गिवन. It is because of the Atma. When the Atma moves from the one body to the another body, there is a possibility of such kind of thing. That is what it happens, right? So these are all the very strong proofs we discussed, which shows that how Atma is not a theoretical concept, but it's a real concept. Right? So here is this video which I was telling you about it, Pilot James and all. Very interesting video. If you will see, it's a real thing which came up, right? Anyways, we have shortage of time, so we'll show you towards the end of the session, okay? When we have some time left with us. This is that video. Another case which he has studied, this is also a very famous case. This is about a small girl. Her name was Shukla Gupta. बचपन से वो भी अपने पुराने जन्म के बारे में बता रही थी. फिर उसके माता पिता लोगों ने, पंचायत वाले लोगों ने मिलके जो बता रही थी डिटेल्स, उसके हिसाब से they went to the other village जहाँ के बारे में बता रही थी. And there after going, she was able to recognize her daughter. She was able to recognize her husband. She was able to call out their names. She was able to tell कि मेरे घर में कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं. ऐसे करके 30 चीजें उसने वहां पे जाके रिकॉग्नाइज कर दी इमीडिएटली. और वो भी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल टाइप की चीजें हैं. तो एनीवेज खैर पूरा केस हिस्ट्री. राइट, तो इसलिए सारे लोग थे वो एकदम हैरान हो गए कि कैसे हो सकता है ये, किसे पूरा चीजें पता है. राइट, तो लाइक इट देयर आर मेनी केसेस अबाउट द रीइंकार्नेशन. ओके, सो लाइक दिस, दीज आर सम ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स, साइंटिफिक प्रूफ्स. राइट, क्या क्या प्रूफ्स हमने देखे? कॉमन सेंस, कॉन्शियसनेस, near-death experiences, out-of-world experiences, reincarnation. So these are the scientific proofs which even science is now believing that how it is because of the Atma which is exist, because of which it is happening.
एंड सी देयर आर मेनी फेमस पर्सनैलिटीज इन द पास्ट, बहुत सारे फेमस लोग हैं जिन्होंने भी रीइंकार्नेशन के बारे में बात की है. लाइक यू नो दिस इज बेंजामिन फ्रैंकलिन. व्हाट डज ही से? रीड इट आउट. Finding myself to exist in the world, I believe I shall in some shape or other always exist. Same way, this is John Adams. This is Socrates. Socrates says, "I am confident that there truly is such a thing as living again, and the living spring from a dead." Like that आप देखेंगे कि ये जो चीज़ है, बहुत सारे फेमस लोगों ने भी इसको एक्सपीरियंस किया कि कैसे पुनर्जन्म की चीज़ें होती हैं. Okay, so now let us see another important concept that till now we have seen these two concepts. Okay, we saw that how we are not the matter but we are the spirits, and how the scientific proofs. Okay, now somebody may say कि अरे सर अभी हम लोग इतने सारे रोबोट्स बना रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग भी एक थोड़ा पावरफुल रोबोट है सर. कल हो सकता है कि हम भी एक बहुत बड़ा एक पावरफुल रोबोट बना दें जो कि पूरी तरीके से एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह फंक्शन कर सकता है, राइट? तो आप में से कितने लोग बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, someday we can make such kind of robot जो कि एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग की तरह फंक्शन करेगा, राइट? करेक्ट, राइट? नाउ लेट अस सी इज इट पॉसिबल और नॉट. ओके, आर देयर सम डिफरेंसेस और नॉट, राइट? कितने लोग हैं जो मानते हैं कि पक्का सर ऐसा कभी नहीं हो सकता, ह्यूमन बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग है सर और रोबोट रोबोट है, राइट? ओके, सी लेट अस एनालाइज दिस कांसेप्ट. ओके, आर वी सिंपली अ पावरफुल रोबोट? लेट अस सी, राइट? यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग एक एक्सरसाइज से देखेंगे. ओके, सपोज एक मूवी चल रही है, इट्स अ थिएटर, और उस मूवी को देयर इज अ सेट ऑफ सम पीपल, देयर इज अ सेट ऑफ जजेस जो कि उस मूवी को या ड्रामा को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, और वो जो ड्रामा है उसको कैमरा से भी रिकॉर्ड किया जा रहा है. ओके, तो एक तरफ कैमरा है और एक तरफ में एक सेट ऑफ जजेस है, राइट ना? दोनों लोग उस मूवी को देख रहे हैं, लेट अस से, राइट ना? नाउ व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज पीपल? सपोज मूवी में कोई सीन आया जिसमें कि बहुत डरावना कोई सीन आएगा, तो इनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? डर जाएंगे, तो डर शो करेंगे, राइट ना? व्हाट अबाउट द कैमरा? No response. देयर विल बी नो रिस्पॉन्स, करेक्ट? और भी कोई अगर सीन आएगा, कोई और इमोशनल सीन आएगा, विल द कैमरा बी एबल टू शो एनी रिस्पॉन्स? नो, राइट ना? So this shows that how we are not simply a powerful robot, because if we would have been simply a machine, see, a machine has no consciousness, he has no feeling, it can't experience the experiences, right? But we are able to do, right? Suppose if you see a good painting, immediately you feel so wonderful, right? Suppose you come across some nice eatable, you immediately relish it. Suppose you come across a very nice fragrant flower, then immediately you are able to sense its fragrance, right? But on the contrary, can a machine ever do like that? Can a machine appreciate the beauty of a painting? Can a machine appreciate the fragrance of a flower? Can a machine appreciate the delicacy of a dish item? No, right? That shows that how we are not simply a robot. Because we have the presence of the Atma, we are able to exhibit all these symptoms. See, this is the example given. No experiences, no emotions, no consciousness, and no judging, right? So see, here is a person, he's telling to the Swamiji, Swamiji, you see what he's telling? I think our body is simply a complex machine. Why to bother so much about Atma and all? Okay, so here see what this Swamiji has to say. One of you can read this loudly. Does your car or computer grow? Do you have a male and female car that can unite and produce a baby car? A living body undergoes 6 changes, whereas matter just depreciates. It is the soul that makes living body alive. So see, this is what Swamiji is telling ki, okay, you are telling that we are simply a complex machine, right? But do we ever see कि एक मेल और फीमेल कार साथ में आ गया और एक बेबी कार प्रोड्यूस कर दिया? अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, राइट? दो के साथ एक फ्री हो जाता है, क्यों? राइट, ऐसा होता नहीं है, राइट? करेक्ट. और कभी भी हम नहीं, तो सी हियर वी विल फाइंड दैट, सी दीज आर द 3 मेन डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग बीइंग एंड द रोबोट्स. ओके, फर्स्ट थिंग इज, one of you read Piyush. A living body undergoes 6 changes. Why will matter only doing the? हाँ, तो किसी भी लिविंग बीइंग को आप ले लीजिए, चाहे प्लांट्स को ले लीजिए, चाहे एनिमल्स को ले लीजिए, चाहे ह्यूमन बीइंग्स को ले लीजिए, हर सब में ये 6 तरीके के चेंजेस होते हैं. जबकि किसी और मैटर को आप लीजिए, मैटर में हमेशा बस डिस्ट्रक्शन होता है. मैटर जस्ट गेट्स वर्न आउट विद टाइम. जैसे वही लैपटॉप करेंगे, अभी सपोज 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल रख लूँगा, क्या हो जाएगा? ये समय के साथ में अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, राइट ना? तो जो मैटर होता है वो सिर्फ डिंडल होता है, मतलब डिस्ट्रॉय होता है. लेकिन जो भी लिविंग चीजें होती हैं उसमें 6 तरीके के सिम्टम्स होते हैं, राइट? क्या होते हैं हम लर्न करेंगे. दिस इज द सेकंड डिफरेंस. या समबडी एल्स कैन रीड. यस.
A male and female living body can multiply similar species. Machines can't reproduce by union. या राइट. तो देखो मेल और फीमेल लिविंग बीइंग साथ में आ सकते हैं एंड दे कैन प्रोड्यूस अ किड बेबी राइट. बट 2 मशीन्स कभी साथ में आके कभी बना पाती हैं क्या? नहीं बना पाती है राइट ना. तो अगर हम सिर्फ एक रोबोट होते तो फिर रोबोट्स में तो ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए थी ना. बट ऐसी एबिलिटी क्या है रोबोट्स में? वी आर नॉट सिंपली रोबोट्स राइट. Another thing is how every living body has this consciousness. Consciousness का मतलब क्या होता है? चेतना मतलब कि we can think, we can feel, we can will. Will का मतलब होता है कि हम एक्शन कर सकते हैं. हमें कुछ इमोशंस हम फील कर पाते हैं, हम कुछ एक्शंस ले पाते हैं. जबकि मैटर में क्या आता है? कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है. तो अच्छा वो कौन से 6 चेंजेस हैं? देखिए यहाँ पे बता रखा है. फर्स्ट थी एवरी लिविंग बीइंग इज बॉर्न राइट. हम सबका जन्म होता है. प्लांट ट्रीज सबका जन्म होता है राइट. फर्स्ट थिंग इज व्हाट? बर्थ. ओके बर्थ के बाद में क्या होता है? देयर इज ग्रोथ राइट. वी ग्रो राइट. वी वर वन टाइम वी वर स्मॉल चाइल्ड देन वी ग्रू यू नो. देन देयर इज अ मेंटेनेंस राइट. फॉर एग्जांपल लाइक हाउ डू वी मेंटेन आवर बॉडी? कैसे हम अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं? by eating food no by taking some water etc right. Same way plants also they also maintain themselves, animals also maintain themselves right. And then what happens? There's a production of the byproducts. कुछ products form करते हैं right. Like human beings they give us some babies, plants they give some flowers, fruits etc. And next what happens is dwindling. Dwindling means destruction or old age you can say right. See all of us we dwindle right. We grow young and then eventually we grow old and eventually last thing what is the last thing which happens? Ultimately the death happens right now. तो ये 6 changes हैं जो सिर्फ living beings में होते हैं right. It happens only in the living being okay ना. Now compare it with a robot now. Do we find a robot going through all these 6 changes? No right. In case of the robot it is only death or destruction you can say dwindling. So this is strong proof that how we can't be simply a robot but we are a living person okay. Indeed आपको पता है एक साइंटिस्ट था बहुत वेल नोन साइंटिस्ट. उसने 2008 के लिए उसने प्रेडिक्ट किया था कि 2008 में हम ह्यूमनॉइड बना देंगे एकदम ह्यूमन रोबोट्स जो एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग की तरह फंक्शन करेंगे राइट. सपोज मान लो आपको मैरिज करना है तो आपको अपने पसंद की लड़की चाहिए तो आप एकदम अपने पसंद का रोबोट चूज करके उसके साथ में मैरिज कर सकते हो जो एग्जैक्टली आपकी पत्नी की तरह काम करेगी राइट. बट अभी व्हाट इज द ईयर नाउ 2000 राइट. वो रिसर्चर ने अब तो उसके बाद से कुछ बोला नहीं है अब तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है. सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन कॉन्फिडेंटली से कि ऐसा कभी नहीं हो सकता दैट वी कैन मेक अ रोबोट एज गुड एज ह्यूमन बीइंग राइट. व्हाई? बिकॉज ऑफ these 3 things which we learned right. Because we are having consciousness, we go through the 6 changes and we have multiplying ability which no machine can ever have that right. अगर ऐसा हो पाता तो फिर अब तक कोई ना कोई मशीन डेवलप हो चुकी होती ना राइट. कभी 2 स्मार्टफोन साथ में होके आ जाते तो कितना अच्छा होता ना. किसी को तीसरे वाले को स्मार्टफोन नहीं देना पड़ता राइट. ऐसा नहीं हो पाता राइट. सो like this we find that right now. So I will just take this one more part. It will take some 5 minutes more है ना and then we will end okay. So this is something very interesting about mechanism of our mind right. जैसे आपको बता दिया शुरू में right. See all of us we want to practice our will power right. हम लोग बहुत सारे प्लानिंग करते हैं हमारे लाइफ में राइट. हम सोचते हैं कि हर साल खासकर से जनवरी आने वाला है राइट. 1 जनवरी को लोग क्या करते हैं? रिजोल्यूशंस, न्यू ईयर रिजोल्यूशंस राइट. इस साल को मैं थोड़ा सुनहरा साल बनाऊंगा राइट. वी मेक सम मेनी रिजोल्यूशंस राइट. लिखते हैं हम लोग डायरी वायरी बना के. और क्या होता है? 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह उसके बाद में फिर वापस बैक टू स्क्वायर 0 हो जाता है. कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? तो अगर आप डीपली देखोगे उसका रीजन क्या होता है? द मेन रीजन फॉर इज बिकॉज वी आर नॉट एबल टू हैव कंट्रोल ओवर माइंड. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. वी ऑल लैक डिटर्मिनेशन इन अवर लाइफ. वी आर नॉट हैविंग डिटर्मिनेशन टू कंट्रोल ओवर अवर माइंड एंड दैट्स व्हाई वी फॉल टू अवर ओल्ड हैबिट्स. दैट इज द प्रॉब्लम व्हिच फेस राइट. सो लेट अस लर्न हाउ वी कैन हैव दैट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन बाय व्हिच वी कैन होल्ड ऑन टू अवर vows and we can have control over mind right. So we will just learn about the mechanism of the mind okay. So see we have learned about soul right. Now see we have this material bodies, we also have the soul, now we also have mind right. So what is this mind? Let us just learn. तो देखिए यहाँ पे बताया गया है सी जो आत्मा है ना आत्मा like all of us ना आत्मा के ऊपर में 2 तरह की कवरिंग होती है ओके. वन इज कॉल्ड एज द ग्रॉस कवरिंग, दूसरे को बोलते हैं सटल कवरिंग राइट. जस्ट लाइक सपोज like अभी मेरी जो बॉडी है
अभी बॉडी के ऊपर में मैंने देखिए ये मैंने जैकेट पहन रखा है और इसके नीचे में मेरे पास में पैंट शर्ट भी पहन रखा है मैंने, राइट ना। तो देखिए ये जैकेट आपको विजिबल है, राइट, तो इसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस कवरिंग बोलेंगे, जो आपको विजिबल है, जिसको आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट इस जैकेट के अंदर में एक शर्ट भी है और वो स्पेशल टाइप का शर्ट है, ओके। तो क्या वो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, राइट ना। तो लेकिन वो एग्जिस्ट है कि नहीं है, वो है, राइट ना। तो उसे क्या बोलेंगे, सटल कवरिंग। तो जैसे हमारे बॉडी के ऊपर में दो टाइप की कवरिंग है, एक ग्रॉस जैकेट है और एक अंदर उसके अंदर में बनियान भी है, शर्ट भी है, राइट ना। वैसे ही जो हमारी आत्मा है ना, आत्मा इस बॉडी में, आत्मा के ऊपर भी दो टाइप की कवरिंग है। एक कवरिंग है जिसको हम देख पाते हैं, टच कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस कवरिंग। और एक कवरिंग है जिसको हम लोग टच नहीं कर पाते बट हमें पता है कि एग्जिस्ट करती है, उसे बोलते हैं सटल कवरिंग, राइट। समझ में आपको वाला पॉइंट, राइट। तो ग्रॉस कवरिंग जो है हमारे ऊपर में, ग्रॉस कवरिंग मतलब कि मेटल बॉडी, राइट। तो ये मैंने किन चीज़ों की बनी होती है, 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। सुना आपने पंच महाभूत, जानते हैं ना। लाइक जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे जो भी सॉलिड चीज़ें हैं हमारे बॉडी में, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बोन्स विच वी हैव, मसल्स विच वी हैव, ये सारी सॉलिड चीज़ें हैं, सो दे आर फ्रॉम द अर्थ एलिमेंट, राइट। We all have lot of water in our body, lot of liquids are also in our body that constitute the water element, right? हम सबके हीट भी होती है, जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द फायर, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट द फायर एलिमेंट, राइट। तो ऐसे करके आप देखेंगे। सिमिलरली एयर ऑल्सो, देयर इज अ एयर इनसाइड द बॉडी जिसके अंदर में आत्मा फ्लोट करती है, एंड देयर इज अ ईथर ऑल्सो, देयर इज अ साउंड एंड देयर इज अ स्पेस। ईथर मींस स्पेस, एम्प्टी स्पेस, राइट। लाइक हमारा इसोफेगस है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है ना, उसे ईथर बोलते हैं। तो हमारी जो ग्रॉस बॉडी है ये 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है, ओके, जो हमको विजिबल भी होती है, राइट ना। इसके अलावा हमारा एक और बॉडी जिसको बोलते हैं सटल बॉडी। सटल बॉडी बनी होती है हमारी माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो की। मन, बुद्धि और अहंकार बोलते हैं इसको, ओके, राइट। तो लाइक सी, इसको समझने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट से समझ सकते हैं। जैसे सपोज यू हैव अ सिस्टम, ओके, तो बेबी सिस्टम में आपके पास में एक हार्ड डिस्क होती है, करेक्ट, और एक आपके पास में CPU होता है, राइट। तो सेम वे हमारे बॉडी में भी जो हमारा माइंड है वो एक किसकी तरह से, वो एक हार्ड डिस्क की तरह होता है, ओके। और जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, वो क्या होता है, एक CPU के समान होता है। सी, आप में से कितने लोग फील कर पाते हैं कि हाँ हमारा मन भी है और हमारी बुद्धि भी है? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? कितने लोग मानते हैं कि हम मन और बुद्धि दोनों अलग चीज़ें हैं हमारे अंदर सिस्टम, राइट। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज आपने बहुत सारा अभी आप डिनर करके आए, एकदम पेट भर के आज खाया आपने, ठीक है। अभी आपका फ्रेंड आता है और सपोज लेटर से, पवन आपको क्या पसंद है खाने में, फेवरेट आइटम आपका बताओ। कढ़ी, अरे ओके चलो कोई बात नहीं। तो सपोज आपका अभी आप अच्छे से डिनर करके आए थे फुल बजट, राइट, और सामने अगर मान लीजिए आपके फ्रेंड ला के कढ़ी रख दिया, बहुत स्पेशल डिलीशियस कढ़ी है, तो देखिए अभी आपके अंदर में 2 डायलॉग्स चलेंगे, राइट। एक डायलॉग बोलेगा, माइंड क्या बोलेगा, क्या माइंड बोलेगा, खा लेता हूँ, इतना अच्छा है, राइट। और जो इंटेलिजेंस है वो क्या बोलेगी, नहीं मत खा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, राइट ना। तो देखा आपने कि हमारे अंदर में 2 डायलॉग्स आते हैं, राइट ना। तो एक डायलॉग माइंड से आता है और एक डायलॉग हमारा इंटेलिजेंस से आता है, समझे आप लोगों को। तो वी हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ द माइंड एंड द इंटेलिजेंस, ओके। तो उसे होता है मन और बुद्धि। तो इसलिए मन क्या है, मन इज लाइक अ हार्ड डिस्क। देखो हार्ड डिस्क का क्या फंक्शन होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ हार्ड डिस्क इन द सिस्टम, स्टोरेज, राइट। तो सारा जो भी है ना, सारा जो डेटा होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। वैसे ही देखोगे आप हमारे मन में क्या है, जो भी हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, मन में स्टोर होते हैं, राइट। अभी आपके सामने कढ़ी आया जैसे ही, तो क्या होगा, अभी आपका मन में, अरे ये कढ़ी है, पहले भी खाया था, बहुत टेस्टी होती है, खा ले, और करेक्ट होगा ना। तो मन में क्या होता है, स्टोर होते हैं हमारे पुराने जो भी हमने एक्सपीरियंसेस ले रखे हैं, प्लस जो नए हमारी डिजायर्स हैं, मुझे ये मिल जाए, मैं ये खा लूँ, पी लूँ, राइट। सारी कहाँ पे स्टोर होती है, मन में स्टोर होती है। सो दैट्स व्हाई माइंड इज लाइक अ हार्ड डिस्क, राइट ना। और इंटेलिजेंस जो है, इट्स अ डिसीजन मेकर। जैसे जो CPU होता है ना, CPU क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, राइट। तो अवर इंटेलिजेंस इज लाइक अ CPU, ओके। और साथ में फॉल्स ईगो भी है। फॉल्स ईगो क्या है, बेसिकली जो हमें, जो आत्मा है और आत्मा और बॉडी को जो कनेक्ट करता है उसे फॉल्स ईगो बोलते हैं, अहंकार, राइट। कि ऑल्दो हम आत्मा है लेकिन हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, तो ये जो इसे बोलते हैं अहंकार, ओके, उसे बोलते हैं फॉल्स ईगो, ओके। तो ये सटल कवरिंग है हमारे में, क्योंकि इसको हम जानते हैं कि एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि अच्छा आपका मन कहाँ पे, थोड़ा बताएंगे, कैन एनीवन से वेयर इज माय माइंड, नो, राइट। अच्छा थोड़ा मुझे अपना इंटेलिजेंस निकाल के दिखाइए कैसा होता है, नहीं निकाल सकते, राइट ना, क्योंकि बट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, करता है, एग्जिस्ट करता है, राइट ना। तो इसलिए सटल बॉडी कंस्टिट्यूट करता है, ओके।
और अल्टीमेटली हम सब आत्मा है, ओके, और आत्मा का जो नेचर है वो बताया गया सच्चित आनंद, ओके। तो देखिए चित का मतलब क्या बताया गया, नॉलेज, राइट। सो वी ऑलवेज सीक नॉलेज इन अवर लाइफ, इसलिए हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज वांट टू लर्न द नॉलेज, राइट, बिकॉज दैट इज अवर नेचर टू सीक नॉलेज। एंड देन वी ऑलवेज ऑल्सो वांट टू सीक हैप्पीनेस इन अवर लाइफ, आनंद, ब्लिस। तो हम हमेशा हैप्पी होना चाहते हैं, इसलिए हम नई नई चीजें करते हैं ताकि हमें हैप्पीनेस मिल पाए, राइट। तो आत्मा का नेचर है आनंद लेने की कोशिश करना, नॉलेज लेने की कोशिश करना, और आत्मा का नेचर है टू 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 रिमेन ऑलवेज। देखिए सत सत मतलब कि एटर्नल, राइट। तो आप देखेंगे हम में से कोई मरना नहीं चाहता, राइट। सपोज इवन कोई स्मॉल एनिमल भी है, जब उसको अगर आपको सपोज कुत्ता है, उसको अगर आप पत्थर दिखाते हैं तो वो भाग जाता है, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू डाई, राइट ना। तो वैसे बिकॉज वाई वी डोंट वांट टू डाई, बिकॉज अवर ट्रू नेचर इज टू बी एटर्नल, टू नॉट डाई, ओके। सो एनीवेज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हम सब आत्मा है जिसका नेचर क्या है, सच्चिदानंद, ओके। और हमारे ऊपर में सटल कवरिंग है और क्रॉस कवरिंग है, ओके। और बाय दिस नॉलेज ऑफ भगवद गीता वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ अवर आत्मा, दैट इज सच्चिदानंद। हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे लाइफ में, जितना हम स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने लाइफ में गेन करेंगे, ओके। देखिए यहाँ पे बताया जैसे हमने डिस्कस किया था, इंटेलिजेंस इज द डिसीजन मेकर, डिसीजंस लेती है, राइट। माइंड इज अ storehouse of the thoughts, unfulfilled desires and the previous experiences, okay। and उसके अलावा हमारे पास में क्या होती है, 5 इंद्रियां होती हैं जिससे कि हम लोग इनपुट्स लेते हैं, ओके। ये हमारी 5 इंद्रियां होती है ना, ज्ञान इंद्रिय जिसमें होते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं। वो इनपुट कहाँ पे जाते हैं, माइंड में जाते हैं, और फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, इंटेलिजेंस उसके लिए फिर डिसीजंस लेता है, ओके। देखिए एक और ये बताया गया उपनिषद में कि कैसे हमारे बॉडी को कंपेयर किया जाता है चैरियट के साथ में। तो जैसे कि एक रथ है, मान लीजिए, इस रथ में क्या है, घोड़े हैं, एक सारथी है और एक ड्राइवर है, एक उसमें बैठा हुआ व्यक्ति है, राइट। दिस इज अ ड्राइवर, दिस इज अ पर्सन सिटिंग इन द चैरियट एंड दिस आर द हॉर्सेस, ओके। तो हमारे बॉडी को भी कंपेयर किया गया है दैट हाउ जो हमारे अलग अलग सेंसेस है दे आर लाइक द हॉर्सेस, ओके। जैसे आप देख रहे हैं, आपको दिस रिप्रेजेंट्स अवर ईयर्स, दिस रिप्रेजेंट्स अवर nose, eyes, this is ears, tongue कहीं दिखा है, it's for skin actually, ना, skin, तो anyways हमारे जैसे जो 5 इंद्रियां होती हैं they are like the horses, और ये जो इंद्रियां हैं they are connected with our mind। तो माइंड को कंपेयर किया जाता है रूप के साथ में, और जो हमारी जो बुद्धि है वो इसको पकड़ के रखती है, ओके। सो हमारी इंटेलिजेंस इज लाइक द चैरियट ड्राइवर, और इसमें बैठे हुए कौन है, हम लोग हैं, जो कि हम लोग we are the souls sitting in this chariot, okay। तो देखिए अब एक चीज इंटरेस्टिंग चीज जो हमें लर्न करनी है यहाँ पे, भगवद गीता में भगवान बताते हैं अर्जुन को, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मेव शत्रुवत्। तो भगवान फॉर्मूला बता रहे हैं कि कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। वी ऑल हैव डिफिकल्टी, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, भगवान ये फॉर्मूला बता रहे हैं। Yeah, one of you read this. For him who has conquered the mind is the best of friends, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. हाँ, भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है उसके लिए मन क्या हो जाएगा, बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। And the person who is not able to control the mind, for him the mind will remain as the greatest enemy, right? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि माइंड को कंट्रोल करना। अगर माइंड कंट्रोल होगा तो हमारा बेस्ट फ्रेंड की तरह एक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है, सो दिस इज द नेचर ऑफ द माइंड, ओके, दैट इफ इट इज कंट्रोल्ड देन इट कैन बी अवर बेस्ट फ्रेंड, इफ इट इज अनकंट्रोल्ड देन इट कैन बी अवर ग्रेटेस्ट ऑफ द एनिमी, राइट। सपोज इट्स लाइक सपोज एक रिवर है जो फ्लो कर रही है, राइट ना। अभी रिवर फ्री फ्लोइंग रिवर है, लेट अस, राइट। बारिश का टाइम आएगा उसमें बाढ़ आ जाएगी, राइट। विल इट बी ऑफ एनी यूज, इट विल बी ऑफ नो यूज, राइट। बट सपोज मान लीजिए आप एक डैम बनाते हैं, तो क्या होता है, फिर रिवर का पानी कंट्रोल में आ जाता है, राइट। और फिर आप डैम से क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन हैव इरिगेशन चैनल्स जिससे कि आप इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, राइट ना। तो सेम वे आवर माइंड आल्सो हैज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और अगर हम उसको कंट्रोल करें तो क्या होगा फिर, देन द माइंड कैन हेल्प अस इन मेनी वेज। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द माइंड, ओके। जस्ट लाइक देखिए जैसे गैस स्टोव होता है ना, गैस स्टोव, अभी उसमें क्या होता है, रेगुलेटर होता है, राइट। मान लीजिए अगर रेगुलेटर ना हो फिर क्या होगा,
सीधा आप गैस उड़ाओ और कभी भी आग लग सकती है, उसका कुछ यूज कर सकते हैं नहीं। बट रेगुलेटर क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है गैस को, तब हम लोग उसको एक सेफ वे में यूज कर पाते हैं, राइट। वैसे क्या है, अगर हम अपने सेंसेस को, हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं, then we will be able to make best use of those things. If we don't control them, then what will happen? It will be not able to help us in a bigger way. समझ में आपको वाला पॉइंट? तो इसलिए माइंड को देख के बताया गया, माइंड इज कंपेयर्ड टू अ नाइफ, चाकू के समान माइंड को बताया गया। सो इज अ नाइफ गुड और बैड? What all of you feel? Bad, okay. How many of you say it is bad? Okay. How many of you say it is good? Okay. What about others? Both. Very nice. How? Both? किसी डॉक्टर के हाथ में अगर चाकू दिया जाएगा, then it will be able to save life of the people. So it is good, right? But the same knife, if it is being given to some dacoit or robber, then it may become the cause of killing of another person, right? So the knife itself is not good or bad, but based upon its usage, it can become good or bad, right? Same way, the mind also in itself is not good or bad, based upon its use, right? If the mind is controlled, then it can be good friend. If it is not controlled, then it can act as a worst enemy in our life, right? तो ये प्रिंसिपल है, व्हाट इज द गीगो प्रिंसिपल। आप में से कितने लोगों ने सुना गीगो प्रिंसिपल के बारे में? कंप्यूटर साइंस किसी ने पहले पढ़ा है? ओके, तो उसमें प्रिंसिपल था गीगो, GIGO। तो उसका क्या मतलब होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ अगर आप कुछ अगर उसको कुछ गलत वैल्यू देंगे तो फिर रिजल्ट भी गलत आता है। वैसे बताया गया कि अगर हम अपने माइंड में कुछ गलत इनपुट्स देंगे, देन वी आर, if we'll put garbage in our minds, then we will get garbage only. If we will put bad things in our mind, bad impressions in our mind, then we are going to get bad results in terms of the behavior and actions. If we will have good things in our mind, then we are going to get good things out. So now, where do we get the input for our mind in our life? जनरली कहाँ से हम लोग इनपुट्स लेते हैं हमारे माइंड के लिए? What all of you feel? Environment से, okay. Environment in terms of books, media, okay. Books, okay, good. Advertisements, okay. वो मीडिया में आ जाता है, right? Okay, fine. People around us, right? Very good. So generally you will find कि हमारी लाइफ में हम इन 4 चीजों से हम लोग अपने इनपुट्स लेते हैं। The kind of books which we read, okay. The kind of movies which we see, the kind of music which we hear, and the kind of friends which we keep, right? जैसे उन्होंने बताया, environment और friend circle जो बताया था। तो see, if you will read good books, we will have good inputs in our mind. No, if you will read some dirty books, then the mind will have dirty impressions within, right? Nowadays, if you will see, suppose आप म्यूजिक सुन रहे हो 120 डेसिबल्स का एकदम टिक टॉक, immediately आपका माइंड क्या हो जाएगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, आप देखोगे, राइट? बट इफ यू हियर सम नाइस डिवोशनल काम म्यूजिक, योर माइंड कैन बिकम पीसफुल। देयर इज अ म्यूजिक थेरेपी नाउडेज वेरी वेरी फेमस। Same way, if you have a company of the friends who are having some bad habits, immediately you will also start falling prey to those bad habits. तो the point is that how हम किस तरह के इनपुट हमारे माइंड को दे रहे हैं, उसके बेसिस पे क्या होगा, हमारे माइंड की फंक्शनिंग होने वाली है। So now here comes the main thing, इसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, how like generally suppose if you talk about smoking, right? So mind feels, oh, I'm an engineer, I should know how to hold a cigar at least. Smoking makes me feel good, cool. But let's just say, but that is a bad habit, not good for you, right? Your parents won't like to see you doing this. You may become addicted to it. Don't get into wrong track, right? तो आप देखेंगे कि there's always a battle between the mind and the intelligence. थोड़ा ध्यान से सुनेगा जो हम समझदार करने वाले हैं. There's going to be a battle between the mind and the intelligence, okay? And who will become victorious will depend upon what? Will depend upon which one is stronger. Whether the mind will become victorious or the intelligence will become victorious, that will depend upon which one is stronger, okay? So if we have a strong intelligence, then what will happen? The mind will come in under our control, right? So if the intelligence is strong, then it will not allow the mind to go for the dirty things. So the purpose of all this knowledge which we are gaining, the knowledge of the Bhagavad Gita, is to help us to have a strong intelligence. क्योंकि अगर हमारे पास में strong intelligence होगी, उससे क्या हो पाएगा? Then we'll be able to control our mind, and then we'll be able to possess willpower. We'll be able to possess that determination in our life. Okay, so this is how we can. So if we want to have control over our habits, control over mind, then we have to have more and more knowledge, spiritual knowledge. We have to have more and more, intelligence, है ना? और आगे के सेशंस में हम लोग we are also going to learn about mantra meditation.
that is also going to give us a lot of help and strength to hold on to the right things and to become more determined in our life. Okay, so this was a mind mechanism, you know. And last thing, it's very small thing, we'll just quickly go through it. The practical benefits of the knowledge of soul in everyday life, right? तो हमने अब तक सुना सोल के बारे में, साइंटिफिकली भी हमने देखा और एनालिटिकली भी हमने देखा कि कैसे सोल एग्जिस्ट करती है, राइट ना. अब इसका कैसे हमारे लाइफ में कैसे इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है, राइट? लाइक आप में से कुछ लोग कुछ शेयर कर सकते हैं. हाउ डू यू फील दैट दिस नॉलेज कैन बेनिफिट इन योर लाइफ and in the life of the people of this world, or you know, the world as a whole? Any inputs from you? No fighting. No fighting. Okay. कैसे? Can you elaborate it more? If we know about the soul, that we are soul, we are not body, then we will not fight with each other. हाँ, very brilliant point, right? देखिए, very good point. You have told the first point itself. So there can be universal brotherhood. Okay. So generally हम लोग इस वर्ल्ड में क्यों divided रहते हैं? क्यों लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं? Based upon the external differences. Okay, somebody is born into the Hindu family, somebody is born into the Muslim family. Okay, so they fight. Somebody is born as a, you know, black, somebody is a white, somebody is rich or poor, then they may end up fighting. Somebody is educated, somebody is illiterate, then they may end up doing that, right? Somebody is beautiful, somebody is ugly, right? So ये जो external सुपरफिशियल डिफरेंसेस होते हैं, उसके कारण लोग मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, राइट? इससे लोगों के कितने सारे वॉर्स होते रहते हैं वर्ल्ड में, राइट? पीपल आर फाइटिंग लाइक एनीथिंग. इफ यू सी देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ रेसिज्म एंड ऑल, राइट ना. सो बट इफ पीपल हैव दिस नॉलेज अबाउट द सोल, दैट हाउ वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, we all are same only, these are external things to us, right? Then there will be universal brotherhood, right? Then there can be real brotherhood in the life, right? Any other thing? Any other? Like for example, like right now we are having this class, na? So now see, all of us are learning this knowledge, right? Does it make any difference whether you are from which place, which caste? Does it make any difference? Doesn't make any difference, right? Because the knowledge is same. We are all same. We are all the children of God, right? So that is how the universal brotherhood can be there. Okay, fine. क्या हो गया? I think फोटो आपको बहुत अच्छा लग गया, हाँ? Okay, ठीक है. That was a nice photo. They have put in a very nice photo. You want to see it again? No, sir, the last photo of that side. Yeah, this one, ना? Yeah. Good. उन्होंने इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा और फंसाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सेशन को. Okay. अच्छा, any other things you feel that how this knowledge about the soul can help us in our life? Yeah. So actually, we can become fearless. How? Because we are afraid like we will die, but soul, you told us such so eternal. Yeah, right. So we can become free from the fear, right? Just like Arjuna also became free from the fear, right? So generally in this world we have fear, अरे मैं मर जाऊँगा, but we understand it how I'm the Atma. Atma is not going to die, right? Same, we can also become fearless in other terms, right? In this world we have a lot of anxieties. If you're not able to have good intelligence, good beauty, then we feel inferiority complex, right? अगर हम बहुत इंटेलिजेंट नहीं हैं, बहुत ब्यूटीफुल नहीं हैं, बहुत कैपेबल नहीं है कुछ चीज़ों को लेके, तो कई बार हम लोग अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं, करेक्ट ना? बट इफ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ ऑल दिस थिंग्स आर पर्टेनिंग टू द बॉडी ओनली. ओके, आई हैव गॉट दिस बॉडी, इन दिस बॉडी आई हैव गॉट सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रेन, in this body I have certain amount of capabilities, okay, but they are not pertaining to me as a soul. They're the external things, right now. So then we will have very great confidence in ourselves. We'll be able to see our real potentials, you know. God may have given us something lesser, but He may have given us something which is in a good proportion than any other people. So we can derive a lot of confidence in ourselves if we have this knowledge, okay. This was also second point, rising of the inferiority complex, okay. So we will be able to better use our potential without getting depressed because of our incapabilities, है ना? Same as it says, we can have a very nice positive outlook and attitude towards the life, right? If we have this knowledge. Right? तो सी यहाँ पे बता रहे हैं, right? ना? If a person does not have this knowledge, then person may become depressed. And he may not be able to see positively the life. But if you have this knowledge, then you can have, you can exhibit these things of tolerance, patience, consideration, and you will be able to see other people, good potential in other people also, right? इसके लिए एक story भी आता है महात्मा गांधी का. You can go through it afterwards. One time Mahatma Gandhi was going in a ship, and a person saw him. He was a Britisher, so उन्होंने सोचा कि इसका मजाक उड़ाता हूँ. तो उन्होंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, जिसमें कि उन्होंने एक बंदर का फोटो ड्रॉ किया, और उसको पिन से लगा के उन्होंने
को बोला कि ये अपने पास रखो, फोल्ड करके दिया कि ये अपने पास रखो, ये वो तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज़ है। एंड फिर वो वहाँ से चला गया एंड ही वॉज ऑब्जर्विंग कि अभी क्या करते हैं वो उसमें। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि एक बंदर का फोटो बनाया था और वो पोर्ट्रे कर रहा था कि तुम बंदर हो। ओके, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उसको पेपर को, जो पिन था, पिन को निकाल के अपने पास रख लिया, उस पेपर को फाड़ दिया, फेंक दिया वहाँ पे एक डस्टबिन में। तो आदमी कि अरे तुमने क्या किया उस पेपर का? बोला मैंने उसको डस्टबिन में डाल दिया। अरे मैंने बोला था कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए। तो बोला हाँ, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने निकाल के रख लिया है, एक पिन उसमें इंपॉर्टेंट था, बाकी चीज़ मैंने फेंक दिया है। तो पॉइंट क्या है कि जब हमें स्पिरिचुअल नॉलेज होता है ना, देन वी कैन बी वेरी पॉजिटिव इन अवर लाइफ, ना, बिकॉज वी अंडरस्टैंड इट हाउ देयर इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल इन एवरीबॉडी एंड हाउ वी also have good positive potential in us. The Atma has all the good qualities and we can work upon those qualities in our life. Okay, same it says we can have the right use of the resources, right? यहाँ पे बताया गया, देखिए, see here is a multi-millionaire, this is a करोड़पति, this is a true story, है ना? एक पर्सन है जिसके पास में he has hundreds and thousands of dollars, तो बट ही वॉज नॉट वांटिंग टू गिव इट टू हिज सन, ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज सन, तो उसने अपना सारा पैसा स्विस बैंक में रख दिया, है ना। बाद में क्या हुआ, जब वो इस कंट्री में आया तो उसके लड़के ने उसको जेल में डलवा दिया। ओके, अभी ही इज जस्ट हैविंग सेटिस्फाइड कि चलो मेरा सारा पैसा वहाँ पे बैंक में एकदम सुरक्षित है, ही इज नॉट एबल टू यूज दैट मनी एट ऑल, राइट। बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज ऑफ द सोल, देन विल बी एबल टू रिलेट विद एवरीवन's फीलिंग, वी विल वांट टू हेल्प एवरीवन। Like see, here is a person trying to feed a cow. Okay, so when we understand it how everyone is a soul, then we will want to serve them, and we will not want to keep things for ourselves selfishly, but we will want to give to the people of this world, you know, more and more. So like this we will find out how there are great benefits which we can derive by the knowledge of this Atma in our life. Okay, so this is a summary what we saw today. First part, scientific proofs, then the difference between the robot and the living being, and the mechanism of the mind, that how by understanding this type of knowledge it will help us to strengthen our intelligence, by which we will be able to subdue our mind subsequently, you know. We can be very confident, we can be very fearless, and these are some practical benefits which we got to see today. Okay, so thank you so much for your patient hearing and for a very wonderful active participation. I am very confident that all of you have very good capacities, understanding, and in our further sessions we are going to explore it more and more. And some of the videos which I couldn't show you, I will tell your seniors to send to all of you. There's very wonderful video about it, out of body experiences which I was mentioning. Also this video about the pilot. Even if you go on the YouTube, you'll find a lot of videos upon, you know, reincarnation. This is a very well-known fact nowadays. So thank you so much. Next session we are going to learn another very important thing. Today we learned about ourselves. Okay. Next time we are going to learn about the supreme being, the supreme creator, the supreme mastermind behind this creation. So next time we will be learning about it, na? Thank you so much. कितना हुआ एग्जैक्टली टाइम? 1 hour 30 minutes, 1 hour 20 minutes। वाह, ओके फाइन, चलो 18 minutes ना, चलो 15-20 मिनट हमारा एक्स्ट्रा गया मोटा मोटा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स भी जाएगा।